وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا معاملہ، پی ڈی ایم کے 5 قائدین ان ہاؤس تبدیلی کے مخالف، 4 نے حمایت کر دی۔ نون لیگ نے بلاول بھٹو کے ان ہاؤس تبدیلی کے بیان پر دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنا لی۔ پی ڈی ایم کا کوئی ایجنڈا نہیں، انتشار کی سیاست کو عوام نے یکسر رد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی صوبائی وزیر راجہ بشارت سے گفتگو، کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان قوم کی امید ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے دین کے نام پر چندے کے پیسے سے جائیدادیں بنائی، معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کا ٹویٹ، کہا مولانا اربوں کی کرپشن بچانے کے لیے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے پر بضد ہیں۔ حکومت کی کشتی میں چھید کرنے والے عمران خان کے وزیر اور مشیر کافی ہیں۔ نون لیگ پنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری کا فردوس عاشق کے بیان پر رد عمل، کہتی ہے ملک پر اس وقت شیخ چلی اور نور حوالدار کی حکومت ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ریلوے کو اپنی ملکیت سمجھیں، عوام کی ملکیت سمجھیں۔ یہ حکومت کی ملکیت نہیں ہے، یہ عوام کی ملکیت ہے۔ اس کے ٹیکس ڈالر سے جو ہے ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جہاں پہ نقصان ہوگا، میں نے پہلے کہہ دیا ہے، پہلے نقصان کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم سے نہیں چل سکتا وہ سیکٹر تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہاں کا بھائی کوئی زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ کر کے وہ ریلوے کے اس ٹیک کو منافع بخش کرے گا۔ 30 سال میں تباہی لانے والوں سے کچھ بھی نہیں پوچھا گیا، ہم سے 100 دن کا حساب مانگا گیا۔ وفاقی وزیر ریلوے اعظم سوادی کی پریس کانفرنس، کہا ریلوے کی بہتری کے لیے مجھے 1 سال دیں پھر محاسبہ کریں۔ ANF کورٹ پہ میرے کیس کی سماعت تھی، تقریباً اس کیس کو پونے 2 سال ہو گئے ہیں۔ یہ جعلی اور جھوٹا مقدمہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کے حکم سے جو ہے وہ میرے خلاف قائم کیا گیا، اس میں ابھی تک جو شامل گواہ کیے گئے ان کے بیانات کی کاپیاں جو ہے وہ یہ فراہم نہیں کر سکے۔ 3 سال چور کا شور مچانے والا چور پکڑا جا چکا، براڈ شیٹ کا مالک بھی چور ہے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی میڈیا ٹاک، کہا اب چوروں کا یوم حساب آ چکا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 25 جنوری کو طلب، اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا۔ پنجاب کابینہ کا 40واں اجلاس 25 جنوری کو طلب، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اجلاس کی صدارت کریں گے۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج پلان سمیت 25 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دی جائے گی۔ سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کی وزیر ریلوے اعظم خان سوادی سے ملاقات، باہمی دلچسپی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ اعظم خان سوادی کی داتا دربار پر حاضری، مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی، ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا کی۔ نیب نے خواجہ آصف کی تفتیش سے متعلق رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کروا دی۔ خواجہ آصف کی طارق میر اینڈ کمپنی میں پارٹنرشپ ہے، نیب رپورٹ۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات سمگلنگ کیس کی سماعت، عدالت نے 30 جنوری کو ملزمان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا۔ ملزمان کو درست نقول فراہم کریں، معزز جج کے ریمارکس۔ معاون خصوصی شہباز گل کا تر کمپنی البیراک کے مینیجر کے خلاف کیس، ملزم طاہر مبین کے مزید جسمانی ریمانڈ کے لیے اپیل خارج، ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کا کیس نہیں بنتا، عدالت کے ریمارکس۔ صاف پانی کرپشن کیس کی سماعت مزید کارروائی کے لیے 13 فروری تک ملتوی، شہباز شریف کے داماد عمران یوسف اور بیٹی رابعہ کی گرفتاری سے متعلق رپورٹ طلب۔
शरीफ कॉम्प्लेक्स के लिए पानी के इस्तेमाल पर बिल की अदायगी का मामला, हाई कोर्ट ने वासा को तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। इस नौयत की तमाम दरखास्तें यकजा करके फुल बेंच के रूबरू पेश की जाएं, अदालत का हुक्म। सेशन कोर्ट में शहबाज ततला कत्ल केस की समाअत साबिक SSP मुफक्खर आदिल समेत दीगर मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया गया। समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी, गवाहान बयान कलमबंद कराने के लिए तलब। ज़ैनब अलर्ट एक्ट पर अमल दरामद न करने का मामला, जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सदीक का सदर, वज़ीर आज़म समेत दीगर हुकाम को खत। बच्चों की हिफाजत के लिए ज़ैनब अलर्ट एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद कराने का मुतालिबा। शहर में गुज़श्ता 3 साल के तरक्याती कामों का रिकॉर्ड फराहम न करने का इकदाम, हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त शहरी मोहम्मद इरफान ने दायर की। चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात 27 फरवरी को होंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। जांच पड़ताल 25 और 26 जनवरी को होगी। सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए अबूरी मेरिट लिस्ट जारी। उम्मीदवार UHS की वेबसाइट पर लिस्टों से मुतालिक शिकायत ईमेल के जरिए 25 जनवरी तक भेज सकते हैं। हतमी मेरिट लिस्ट बाद में जारी होगी। जिला इंतजामिया लाहौर के अफसरान मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जूहा शाकिर का सैलानी लंगर खाने का दौरा, खाने के मयार और सफाई सुथराई के इंतजामात को चेक किया। महंगाई के हाथों आवाम परेशान, अशियाए खुरानोश के कीमतों में कमी न आई। मुर्गी का गोश्त 240 रुपए में फरोख्त, सब्जियां और फल भी आवाम की पहुंच से बाहर। ये मुझे बता रहे हैं कि 350 रुपये किलो, तो मैंने इससे कहा कि 300 रुपये दे दें आप, आगे इसकी मर्जी है कितने का देता है। और फल जो है ये तो इतना महंगा है, आम आदमी तो ले ही नहीं सकता। हम ले नहीं सकते, भूखा रह सकते हैं, लेकिन हमारा मजबूरी है। हम हुकूमत को ये कहता है कि ये चीज़ महंगाई है, महंगा है, सस्ता चाहिए हमें। और ये आजकल महंगाई बहुत हो गया, हम घर के खर्चे नहीं भर सकते। बागों के शहर में बदस्तूर कचरे के अनबार, शहरी गंदगी देख देख कर आ गए बेजार। दावों के बावजूद लाहौर साफ ना हो सका, शहर की फजा ताफुन ज़दा, सांस लेना भी मुहाल होने लगा। रहनुमा जमात इस्लामी चौधरी मोहम्मद शौकत ज़िला मुशावरती काउंसिल के सदर मुकर्रर, जमाती काम में तोसी समेत मजहबी और सियासी जमातों में राब्ते का काम करेंगे। जिक्रुल्लाह मुजाहिद कहते हैं चौधरी शौकत तजर्बाकार साथी हैं, तहरीक को फायदा होगा। इश्तिहारी मुल्ज़िमान, अदालती मफरूरों और आदि मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म, कहते हैं मफरूर मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। चौहत्तर ई चालान जमा न करवाने वाला रिक्शा पकड़ा गया। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने कानून शिकन ड्राइवर को रिक्शा समेत पकड़वा दिया। रिक्शा मालिक के जिम्मे 14,800 रुपए वाजिबुल अदा हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी शहरियों को गैस की सहूलत फराहम करने में नाकाम। 27 लाख से ज्यादा शहरी सालों से गैस कनेक्शन के मुंतजिर। लाहौर रीजन में 3.5 लाख से ज्यादा दरखास्तें इल्तवा का शिकार। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। लश्कर और FIA ऑफिसर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। अफसरान को ऑपरेशन के हवाले से खुसूसी हिदायत भी जारी। सुपीरियर अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए भी पेश। बिजली लोड शेडिंग का तोड़ ले आया। EMS ग्रीन एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड और AC सोलर कंपनी में मुआहिदा। 2 मेगावाट से लेकर 15 मेगावाट तक बिजली तैयार की जाएगी।
मुश्किलात से जान छुड़ाएं, आसानियों के सफर को अपनाएं। नंबर 1 कैब सर्विस माई लिफ्ट का बाकायदा आगाज। माई लिफ्ट की गाड़ियां जिंदा दिलों के शहर में सड़कों पर रवा दवा। माई लिफ्ट सर्विस की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान, इमरान नजीर, फैसल शरीफ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियो न्यूज नसरुल्लाह मलिक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर रंग हुमायूं सलीम, चेयरमैन यूनिक ग्रुप समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। माई लिफ्ट जिंदा दिलाने के लिए किसी तोहफे से कम नहीं, अहम शख्सियात भी मुतरिफ। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान बोले, माई लिफ्ट लाहौरियों को बैनुल अक़वामी मायार की सहूलियात सस्ते दामों मुहैया करे। माई लिफ्ट की जो मैनेजमेंट है और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हुमायूं सलीम साहब, उनको मुबारकबाद पेश करूँगा। इसमें इन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे इंसेंटिव्स हैं कि जो पुरानी जो कंपनियां हैं वो नहीं दे रही। इस कारोबार की वजह से जिन लोगों को रोज़गार मिलेगा वो भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी खुश हैं। पीक आवर के नाम पर पैसा बनाएंगे, ना ही अपने कैप्टन का हक खाएंगे। माई लिफ्ट ड्राइवर और मुसाफिर दोनों के लिए सूदमंद, इसीलिए तो आते ही बन गई सबकी अव्वलीन पसंद। इस बड़ी खुशी की बात है और खुशी का दिन है कि सहूलतों का सफ़र के नाम से जो ये एक सर्विस शुरू हुई है, अहले लाहौर के लिए ये बहुत बड़ी नेमत होगी। माई लिफ्ट के आने के बाद जो राइडर्स हैं उनको मज़ीद आसानी होगी, उनके लिए जो है वो किरायों में कमी के साथ साथ क्वालिटी की और बेशुमार सहूलियात होंगी। और मेरी ख्वाहिश है कि माई लिफ्ट जो है ये फले फूले तरक्की करे। माई लिफ्ट के लिए ढेरों दुआएं भी हैं और पाकिस्तान में जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने मज़ीद तरक्की दे और जो सफरी सहूलियात बेहतर से बेहतर ये आवाम को दे सकें, उसमें कंपनी का फ़ायदा भी है और आवाम का फ़ायदा भी है। देखिए, हम फुल स्पॉन्सरशिप पोर्टफोलियो हमने डिलीवर कर ली है और 6 क्रिकेट एसोसिएशंस जो भी हमारे हैं, इंशाल्लाह ये बिटवीन द 10th and 15th of February हम अनाउंस कर रहे हैं 6 हमारे क्रिकेट एसोसिएशंस के स्पॉन्सर्स। बाकी जो स्पॉन्सरशिप्स, साउथ अफ्रीका की सीरीज़, बाकी जो हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट था, हमने फुल पोर्टफोलियो डिलीवर कर लिया। 14 बरस बाद साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान में खेलना एक जज्बाती लम्हा है। शायकीन के लिए यह तारीखी और यादगार लम्हात हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात की 24 घंटों में बादल बरसने की पेशगोई। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बानी हिदायतकार लुकमान की आज 27वीं बरसी। उन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद बनने वाली दूसरी फिल्म शाहिदा बनाई।